class. चलें तो बच्चों, in today's class we need to talk about two chemical properties of acids, then third chemical property of carboxylic acid, which is actually esterification. तो वो बड़े काम की हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो उसको पढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब भी जरूरी है बट वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। So let's start. First of all, we just talked about in the last class that when acids react with metal, they will form salt and water. Oh, sorry. When acid reacts with metal, they form salt and hydrogen gas. And now we are moving towards the second chemical property, which is when acids reacts with metal carbonates. When they react with metal carbonates, they will form what? Salt, carbon dioxide, and water. Salt, carbon dioxide, and water. Now, this is the second chemical properties of acids. Even if you have mineral acids or if you have organic acids, whatever the acid you have, they show this chemical property. So, ये उसमें भी आएगी। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड होता तो भी यही काम करता, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड है, जो भी आपके पास एसिड है वो भी यही काम करेगा. So the same scene over here as well. If you have CH3, COOH, this is ethanoic acid, and if you have any carbonate like sodium carbonate like this, so आपके पास बनेगा क्या बच्चों? First of all, carbon dioxide and water would be the fact, ये बनेंगी ही बनेंगी, लाजमी बनेंगी. और बचा क्या आपके पास? This is ethanoate ion and along with sodium, so this would be sodium ethanoates. ठीक है ना? तो it should be sodium ethanoate, so it is CH3COO and A plus. अब इसको बैलेंस करने के you can see this that right now we have two sodiums, so we can write 2 over here for the balancing and 2 over here. Right, बच्चों? Yes, sir. Then we can change even metal carbonate. For suppose if I have CH3 COOH and I'm reacting it with calcium carbonate, so again the salt which is produced is CH3 COO, but this time this is 2Ca. This should be 2Ca and then carbon dioxide and water, and for the balancing you can write 2 over here, and the name of this salt would be calcium ethanoate. The name of this salt will be calcium ethanoate. Right, bacho? And if examiner asks for the observation of this reaction, so you can say that a colorless gas physics. You can say that a colorless gas physics. You can say that by इस reaction की जो observation होगी वो क्या होगी? A colorless gas physics. Or you can say that a gas releases. You can even say that a gas releases which turns lime water milky, which turns lime water milky. You can even say like that, but you don't need to write the name of the product that carbon dioxide produces. आप इस तरह नहीं कह सकते. Observation का मतलब ये होता है कि what you are observing over there, आप क्या देख रहे हैं process में, वो बताना है आपने. You are just watching कि भाई कोई गैस रिलीज हो रही है. ये ऐसा नहीं होगा आपको गैस रिलीज होती हुई नजर आ रही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, ऐसा नहीं होता. आपको ये पता होगा गैस रिलीज हो रही है. इवन यू नो दैट, आपने पढ़ा हुआ भाई कोई भी कार्बोनेट एसिड के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यू नो दिस, बट ऑब्जर्वेशन में आपको नहीं पता. उसमें आपको सिर्फ कलरलेस गैस नजर आ रही है. अगर आपको कंफर्म करना चाहें तो लाइम वाटर से टेस्ट कर सकते हैं. इफ इट इज टर्निंग मिल्की दैट देन इट्स कंफर्म कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है. अदरवाइज आपको सिर्फ कलरलेस गैस नजर आ रही है. कलरलेस गैस अमोनिया भी होती है, कलरलेस गैस हाइड्रोजन भी होती है, कलरलेस गैस ऑक्सीजन भी होती है. सारी गैसेस ऑलमोस्ट कलरलेस होती हैं अदर देन ग्रुप 7. तो इस तरह से हमें आइडिया नहीं होगा, ठीक है ना? हमें नाम नहीं लिखना ऑब्जर्वेशन में. चलें, सो नाउ हियर वी हैव फ्यू एग्जांपल्स फॉर यू दैट जो आपने करनी है. स्किल टेस्ट. इफ यू हैव CH3 COOH, if it is reacting with K2CO3, or if you have HCOOH, which is methanoic acid, and if it is reacting with for suppose barium carbonate, and if you have for suppose CH3 COOH and it's reacting it for suppose it is for suppose magnesium carbonate. So जल्दी से इसके reactions मुझे लिखकर बता दें that you all know how to write these equations correctly, and also नाम भी लिखेगा बच्चों, प्रोडक्ट के नाम, सॉल्ट्स के नाम. तो हमारे पास यहाँ पर जो है पहले वाले में जो सॉल्ट बनेगा, इट शुड बी CH3 COOK along with CO2 and water. If you want to balance this, you can write 2 over here and 2 over here. और यहाँ आपके पास बनेगा
you have HCOO twice barium and then carbon dioxide and water. You can check your ones कि आपने ऐसे ही किया है. And then last वाले में भी कुछ इसी तरह का सॉल्ट बनेगा, CH3COO twice magnesium along with the carbon dioxide gas and water molecule. ठीक है ना. बैलेंसिंग के लिए you can write 2 over here. तो आप सब अपने अपने चेक कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसी तरह से किया है. और नाम लिखते वक्त आपने खास ख्याल रखना है कि पहले वाले का नाम है पोटेशियम इथेनोएट, सेकंड वाले का नाम है बैरियम मिथानोएट और लास्ट वाले का नाम है मैग्नीशियम इथेनोएट. Is that right, every one of you? Yes, sir. चलिए आगे चलें. Yes, sir. चलिए, तो हमारे पास जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है, वी आल्सो नो दिस, हमने वो एसिड बेसिस में पढ़ी हुई है. We know that chemical property is showing that whenever acid reacts with metal oxide, the bases होते हैं, metal hydroxide, alkalis होते हैं, whenever they react together they will form what? Salt and water. क्या बनेगा आपके पास? सॉल्ट और वाटर. बच्चों ये सबसे आसान केमिकल प्रॉपर्टी हो सकती है एसिड्स की, और ये हम सबको बहुत ही अच्छे से याद भी होती है. और फॉर सपोज इफ यू हैव CH3COOH, if I am reacting it with copper oxide, so definitely it would form what? CH3COO twice copper and then water molecule. Right, for the balancing you can write 2 over here. Same as it is if you are reacting CH3COOH with sodium hydroxide, so it would produce what? Sodium ethanoate, right? It would be CH3COO Na plus water molecule. Same as it is if you are reacting with HCOOH plus calcium hydroxide, so it would produce what? It would produce HCOO twice calcium plus water molecule. Right, bachcho? Yes, sir. So these are the same things that we already talked about in acids. बस हमने क्या किया है इस वक्त, हमने जो है slightly सी changes किए हैं, और वो slight changes ये हैं कि आपने जो है बस कोई भी एसिड जो आप यूज कर रहे थे उसको चेंज कर कर आपने क्या किया है, आपने ऑर्गेनिक एसिड यूज किया है, और उसका भी लास्ट का आप क्या कर रहे हो, लास्ट का H जो है इसका भी आप हटा रहे हो. राइट बच्चों? वाटर की प्रेजेंस का टेस्ट we already talk about this, तो आपको याद होना चाहिए कि you can use anhydrous copper 2 sulfate for the test of presence of water, and also you can even use cobalt 2 chloride for the presence of water. ठीक है ना भाई, ये आपको याद होना चाहिए ऑलरेडी. ठीक है बच्चों? इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट मैंने आपकी बात कर ली है, हाइड्रोजन के टेस्ट की बात हमने कर ली है. Is that right, every one of you? Yes, sir. Yes, sir. चलें, तो अब हम चलते हैं अपने मेन केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ, which is एस्टरिफिकेशन. ठीक है ना. मेन केमिकल प्रॉपर्टी जो है आपके पास वो क्या है? एस्टरिफिकेशन है, उसकी बात हमें करनी है. तो भाई दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4. ठीक है ना. ये केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 4 कह सकते हैं आप इसको. और इसके अंदर आपके पास ये अल्कोहल की भी केमिकल प्रॉपर्टी है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की भी केमिकल प्रॉपर्टी है. ये आप कह सकते हैं ये जो एस्टरिफिकेशन है ये ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्गेनिक होने की वजह से हम इसको यूज कर सकते हैं. केमिकल प्रॉपर्टी ये एसिड्स की नहीं हो सकती है. ठीक है ना. अगर इसमें सीन ये देखें, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं. फॉर सपोज इफ यू हैव कार्बोक्सिलिक एसिड एंड यू आर रिएक्टिंग इट विद अल्कोहल, तो आपके पास बनता क्या है? आपके पास बनता है एस्टर्स और आपके पास बनता है वाटर. ठीक है ना. यू नीड टू कीप रिमेंबर दैट कि इसके अंदर हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी, और साथ साथ 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी. ठीक है ना. तो ये ऐसी कंडीशन हो गई. इसका नाम होता है एस्टरिफिकेशन. इस प्रोसेस का नाम क्या होता है आपके पास? एस्टरिफिकेशन. यू कैन कॉल दिस एस्टरिफिकेशन. द टाइप ऑफ रिएक्शन अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में, यू कैन से दैट कि सर ये एस्टरिफिकेशन. रिएजेंट आपसे पूछें, कैटलिस्ट आपसे पूछें, तो आप बता सकते हैं कि आप इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं. टेम्परेचर का पूछें तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और अगर आप ये याद ना रखें सिंपल हीट भी लिख सकते हैं आप इसमें. ठीक है. अब देखें सीन क्या है. सीन ये है कि फॉर सपोज ये आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है. This is the carboxylic acid we have right now. ठीक है भाई. और आपके पास फॉर सपोज अल्कोहल है. अगर मैं अल्कोहल 3 कार्बन वाला ले रहा हूँ और मैं अगर OH यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? अगर मैं OH यहाँ लिख दूं तो एक ही बात है ना. ये भी फर्स्ट कार्बन ही है. अगर मैं राइट हैंड साइड पे लिखूं या मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूं, बात एक ही है. राइट? Yes, sir. ठीक है. अब जरा देखें और से सुने. आपके पास सीन क्या है? सीन आपके पास ये कि हमेशा 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 कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH प्रोवाइड करेगा,
और अल्कोहल अपना H प्रोवाइड करेगा। देखें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड एज एन एसिड काम नहीं कर रहा। उसकी वजह क्या है, अगर ये एसिड होता तो ये अपना H पॉजिटिव आयन डोनेट कर रहा होता तो प्रोसेस हो रहा होता। यहाँ पर ये एसिड नहीं है, अगर ये H पॉजिटिव आयन दे रहा होता तो फिर यही प्रॉपर्टी H2SO4 में भी हो रही होती, वो भी अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे होते। यही प्रॉपर्टी आपके पास HCl में भी हो रही थी, वो भी जो है क्या नाम है अल्कोहल से रिएक्ट कर रहे होते। बट दिस इज नॉट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। ये अपनी एसिड वाली प्रॉपर्टी यहाँ शो नहीं कर रहा, ये अपना H पॉजिटिव आयन नहीं दे रहा, ये अपना OH दे रहा है। तो ये ऑर्गेनिक होने की वजह से ये H इस तरह का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ एसिड वाला काम नहीं हो रहा, जस्ट रिमेंबर दिस। ये कार्बोक्सिलिक एसिड की अपनी प्रॉपर्टी है, ये अपना H नहीं दे रहा, OH दे रहा है। तो जब ये अपना OH दे देगा और वो अपना H दे देगा अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा आपके पास, पानी बन जाएगा, सिंपल वाटर मॉलिक्यूल। साथ साथ आपके पास क्या स्ट्रक्चर बनेगा, जो बचा है वो जस्ट हमने वो लिखना है। देखें इसने अपना OH दे दिया तो ये इथेनोइक एसिड का ये पार्ट आपके पास बचा, ठीक है ना। उसने अपना H दे दिया तो अल्कोहल का आपके पास ये पार्ट बचा, ठीक है भाई, ठीक है बच्चों। अब ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे इस तरह से, राइट। Yes, sir. अब इसका मेन चीज जो है, इसका मेन है नाम। नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखना इंपॉर्टेंट है, नाम का पता होना इंपॉर्टेंट है। नाम का अगर आपको पता होगा किस तरह लिख सकते हैं, किस तरह उसमें फिर आप रिएक्टेंट्स भी फाइंड आउट कर पाओगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। जरा देखिए आपके पास कितने कार्बन है अल्कोहल में, आपके पास कितने कार्बन हैं अल्कोहल्स में, वो हमें पहले लिखना है, ठीक है। तो अल्कोहल में कितने कार्बन हैं हमारे पास, जस्ट लुक एट ओवर हियर, वी हैव 3 कार्बन इन अल्कोहल, राइट। तो ये 3 कार्बन है, ये हम पहले लिखेंगे। 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप। तो दिस इज प्रॉप, ये हमने पहले लिखना है। और हमेशा 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 इसके साथ आप लगाएंगे YL, क्या लगाएंगे आप हमेशा, YL। तो दिस इज प्रोपाइल, दिस इज व्हाट, प्रोपाइल। तो हमेशा जो कार्बन आपके पास अल्कोहल में होंगे उसको आप पहले लिखोगे और उसके साथ आप लगाओगे YL, तो ये बन गया प्रोपाइल। और जो कार्बन आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड में है वो आएंगे बाद में, तो ये हो गया इथ, 2 कार्बन इथ, ठीक है। इसके साथ आप लगाओगे एनोएट, तो ये नाम हो गया आपके पास क्या, आपके पास नाम हो गया प्रोपाइल इथानोएट, ठीक है बच्चों। Yes, sir. ठीक है, तो आपके पास हमेशा हमेशा आपको याद रखना है जो अल्कोहल वाले कार्बन हैं वो पहले आएंगे, उसके साथ YL लगेगा, और जो आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कार्बन हैं वो बाद में आएंगे और उसके साथ लगेगा NO8। इज दैट क्लियर? एक और एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। हम एक और एग्जांपल करते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये क्या चीज है, हमें दोबारा से समझ में आ जाएगा। आई एम जस्ट चेंजिंग एसिड एंड अल्कोहल बोथ ऑफ देम, जस्ट लुक एट ओवर हियर। मेरे पास क्या है बच्चों, फॉर सपोज मेरे पास 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर सपोज लाइक दिस इज प्रोपेनोइक एसिड। क्या है बच्चों, ये प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। इसका रिएक्शन मैं कराता हूं बच्चों 2 कार्बन वाले अल्कोहल के साथ, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इथेनॉल, ठीक है ना। प्रोपेनोइक एसिड इज रिएक्टिंग विद इथेनॉल। अब आपने याद रखना है जब कभी भी रिएक्शन होगा हमेशा हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड अपना OH देगा और अल्कोहल अपना H देगा, तो दे जस्ट रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल, ये अलग हो जाएगा और जो बचेगा वो आपस में कंबाइन हो जाएगा। तो भाई इथेनॉल ने जब अपना H दे दिया तो ये आपके पास बचा ये वाला प्रोसेस, ठीक है ना, ये वाला पार्ट बचा आपके पास खाली। ऐसे ही है बच्चों, Yes, sir. और इस वाले का जो है आपके पास ये वाला पार्ट बचा है, ऐसे ही है बच्चों। Yes, sir. आपस में रिएक्ट कर लेंगे और ये बन जाएगा आपके पास एस्टर लिंकेज, ये बन गया आपके पास एस्टर लिंकेज। दिस इज द एस्टर लिंकेज, ये C डबल बॉन्ड O NO, दिस इज एस्टर लिंकेज, ठीक है। और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है किरण, दिस इज द सेम, दिस इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, बट वो हमारे सिलेबस में एज SH रिवर्सिबल रिएक्शन आता नहीं है, तो आप उससे बेफिक्र है, ठीक है ना। एज अ रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे सिलेबस में नहीं आएगा, है रिवर्सिबल रिएक्शन बट ये आएगा नहीं इस तरह, ठीक है। अब इसका नाम किस तरह रखेंगे बच्चों, देखें अगेन we have 2 carbons over here in ethanol, in alcohol part, so ये हमें पहले लिखना है eth, 2 कार्बन है उसके साथ लगेगा YL, इथाइल। 3 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो ये बाद में लिखे जाएंगे prop, और इसके साथ लगेगा NO8, तो this is ethyl propanate। Is that right बच्चों? Yes, sir.
अब देखें इसी तरह रैंडमली अगर मैं आपको कोई भी एस्टर दे दूं या आपको मैं कोई भी नाम दे दूं तो आप इसको बना भी सकते हैं। फॉर सपोज मैंने आपको दिया कि भाई मैंने एक रैंडम नाम दे दिया, भाई आपके पास है ब्यूटाइल इथेनोएट, ये बनाया आप, दिस इज वन ऑफ द एस्टर ब्यूटाइल इथेनोएट, ये आप बना के दिखाएं मुझे। अभी एक बिल्कुल रैंडम नाम है, तो हम ये कैसे करेंगे, देखो आप इतने आराम से इसको बहुत आराम से कर सकते हो। पहले क्या बना लो, इसका आप फंक्शनल ग्रुप बना लो एस्टर का। एस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या है आपके पास, एस्टर का फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और ये O, ये तो होना ही होना चाहिए एस्टर में, ठीक है, ठीक है भाई। जी सर। ओके सर। जी सर। अब ये कह रहा है आपके पास कि आपके पास ब्यूटाइल है, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन अल्कोहल में, और अल्कोहल आता है O के बाद, ठीक है ना। तो आप यहाँ क्या लगा सकते हैं, यहाँ 4 कार्बन लगा सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये हो गया ब्यूटाइल आपके पास, इसके हाइड्रोजन आप पूरे करते हैं, ठीक है। और ये कह रहा है आपके पास कि 2 कार्बन आपके पास इथेनोइड में है, तो एक कार्बन आप ऑलरेडी लगा चुके हो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दूसरा आप एक और लगा लो यहाँ पर, ये हो गया आपके पास ब्यूटाइल इथेनोइड। तो अगर आपको ये नाम रखने का तरीका आता है तो आप सिर्फ नाम से स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, जो कि 2 मार्क्स के लिए पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है। यस। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? नो सर। ऑल क्लियर, ठीक है। अब देखें एक और चीज, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको मैं एक नाम दे रहा हूं, आपके पास नाम है क्या, प्रोपाइल प्रोपाइल मिथानोएट, और सपोज मैंने आपको ये नाम दिया और मैंने आपसे पूछा कि भाई बताएं व्हाट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस, व्हाट आर द रिएक्टेंट्स ऑफ दिस। तो अगर आपको प्रॉपरली नाम लिखना आता है, तो आपको ये पता होगा कि ये किस तरह बना है, तो आप आराम से इसके रिएक्टेंट्स भी निकाल सकते हो। किस तरह, वी नो दैट कि जो भाई आपके पास पहले आ रहे हैं कार्बन, ये होते हैं अल्कोहल के, तो 3 कार्बन वाला आपके पास क्या होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए। तो वन ऑफ द रिएक्टेंट ओवर हियर इज प्रोपेनॉल, राइट बच्चों। और जो बाद में नंबर ऑफ कार्बन आते हैं, ये आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक कार्बन वाला आपके पास क्या होगा, मिथानोइक एसिड, ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास ये वाला एस्टर बन जाएगा, व्हिच इज प्रोपाइल मिथानोएट अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है भाई, इज इट क्लियर? यस जी। एनी प्रॉब्लम टू एनी वन ऑफ यू? ऑल क्लियर? अच्छा देखिए एक बात और आपने याद रखनी है कि जो आपके पास एस्टर्स होते हैं बच्चों, ये एस्टर्स की स्मेल बड़ी यूनिक होती है। तो ये जो एस्टर्स होते हैं इनको पेपर में बहुत सी मर्तबा देखा जाएगा, आप देखेंगे कि ये बोलेंगे स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो अगर कहीं पर भी स्वीट स्मेलिंग प्रोडक्ट का नाम अगर आप सुने तो आप समझ जाइएगा कि ये जो है एस्टर की बात कर रहे हैं। सिर्फ इनकी इस यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से दे यूज इन परफ्यूम्स, राइट। ये कहाँ यूज होते हैं भाई, ये आपके पास होते हैं परफ्यूम्स में यूज होते हैं। साथ साथ क्योंकि ये लिक्विड्स हैं तो ये आपके पास एज अ सॉल्वेंट भी यूज हो सकते हैं, और साथ साथ ये क्योंकि इनकी स्मेल बहुत अच्छी होती है तो ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पर भी यूज होते हैं। इज दैट राइट बच्चों? ये यस इनके सर। यूज, ठीक है। तो फिलहाल आप ये सारी बातें अपने पास लिखें, और साथ साथ मैं आपको दे रहा हूँ कुछ रिएक्शंस करने के लिए, तो आप मुझे रिएक्शंस करके दिखाएं। फॉर सपोज अगर आपके पास हो, तो सपोज आपके पास हो अगर मिथानोइक एसिड और ये रिएक्ट कर रहा हो किसके साथ, आपके पास अगर मिथानॉल के साथ, तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर बनाना है आपने। और सपोज आपके पास अगर प्रोपेनॉल है और प्रोपेनॉल का रिएक्शन आप करा रहे हैं ब्यूटानोइक एसिड के साथ, ब्यूटानोइक एसिड के साथ, तो आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर क्या बनेगा, इसमें आपने बताना है स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, ठीक है। साथ साथ आपने बताना है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल, आपने रिएक्टेंट्स के स्ट्रक्चर्स भी आपने बताने हैं। और अगर फॉर सपोज आपके पास, और बनाना भी है स्ट्रक्चर ना, ठीक है ना, फॉर सपोज आपके पास ब्यूटाइल प्रोपेनॉइड है, तो इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं उसके स्ट्रक्चर्स आप बनाइए। और अगर आपके पास लिखा हुआ है मिथाइल इथेनोएट, तो इसमें कौन कौन से रिएक्टेंट्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स बनाइए। और साथ साथ आप ड्रॉ भी कीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर। अगर मैं आपको दे दूं फॉर्मूला लाइक यू हैव C5H10O2, आपकी मर्जी, आप कुछ भी बना सकते हैं। और अगर आप इसके आइसोमर्स बना सकते हैं तो दैट्स वेरी गुड। इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं, मतलब कितने तरह के स्ट्रक्चर्स इसके बन सकते हैं। अगर 5 कार्बन हो तो कितनी तरह के स्ट्रक्चर आइसोमर्स के बन सकते हैं, आपने ट्राई करना है, ठीक है। और जल्दी से पहले ये कर लें, उसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। Let's try this quickly बच्चों।
तो यहाँ पर आपने देखना है कि आप लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं वो सही बनाए हैं या नहीं। द फर्स्ट वन का आंसर आपके पास क्या होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एस्टर्स हमें बनाना है यहाँ पर। तो फर्स्ट वन का आंसर क्या होगा, दिस इज एस्टर लिंकेज, ठीक है ना, 1 कार्बन इसके अंदर है तो इट वुड बी लाइक दिस, राइट बच्चों, ऐसे बनाया आप लोगों ने। दूसरे वाले में आपके पास दिस इज द एस्टर लिंकेज, ठीक है ना, और क्योंकि हमारे पास 3 कार्बन्स हैं अल्कोहल में, तो हियर वी हैव 3 कार्बन्स, right, and we have 4 carbons in carboxylic acid, so here we have 4 carbons in this way, right बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, You can see this, we have butyl propanoid, यानी कि हमारे पास यहाँ butanol होगा, ठीक है ना, और यहाँ प्रोपेनोइक एसिड होगा, एंड मिथाइल इथेनोएट यानी कि हमारे पास मिथानॉल होगा और इथेनोइक एसिड होगा। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो बच्चों आपने 5 कार्बन्स पूरे करने हैं। अब आपकी मर्जी है आप कैसा भी स्ट्रक्चर बनाएं। देखें ये आपने एस्टर लिंकेज बनाया, अब ये 1 कार्बन यहीं छोड़ दें, 4 कार्बन आप यहाँ कर दें, तो ये C5H10O2 हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर 2 कार्बन कर दें और यहाँ आप 3 कार्बन कर दें, ठीक है ना, तो इट इज ऑल्सो C5H10O2। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर 3 कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पर आप 2 कर दें, ठीक है, दिस ऑल्सो C5H10O2। आपकी मर्जी है, आप यहाँ पर 4 कर दें और यहाँ पर आप 1 कर दें, तो इट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज ऑल्सो व्हाट C5H10O2। तो बच्चों हर हाल में आपके पास ये C5H10O2 आएगा, एंड दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, दे ऑल आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। इज दैट राइट एवरीवन ऑफ यू? yes, sir. Yes, sir. मॉलिक्यूलर फार्मूला सबका Yes, sir. सेम एज इट इज। आप देखें मैंने शुरू में जो स्ट्रक्चर बनाया था, शुरू में जो 2 स्ट्रक्चर बनाए थे, दे आर आल्सो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। जस्ट लुक एट ओवर हियर, दिस इज प्रोपाइल इथेनोएट and ethyl propanoate, they both are isomers of each other, and in both of them you have 5 carbons, 10 hydrogens and 2 oxygen. If you want to write the journal formula for this family, so it would be like CnH2nO2, journal formula भी इसका इस तरह होता है। or if you want to write the functional group of this family, so it would be like this. This is also one of the family, this is also one of the homologous series, but in our syllabus it is not like a homologous series, it is just one of the chemical property of carboxylic acid and alcohol, right everyone of you? Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. So here we have the chapter of alcohol and carboxylic acid. Okay, end ho gaya. Inshallah in tomorrow's class we will talk about some past papers of this chapter, right bachcho?